फिर शुरू करने वाले हैं। अब आपकी आवाज ना आए, ठीक है? Respected speaker of the day, Dr. Deepak Rai. Very good afternoon, sir. Dr. Deepak, maybe साइन इन किया है, उनको फोन आया था। Let me see. हाँ जी सर, शुरू करते हैं। जी जी जी। ओके। Sir, you are mute. Please unmute yourself. Yes, madam. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible now. A very good afternoon, sir. Namaskar, madam. Namaskar ji. The guests which are present today, Dr. Ramesh Pal, Dr. Gyan Bhushan Kundra, Dr. Ravindra Huda. A warm welcome to you all. A very good afternoon to you all. Dear fellow teachers and dear students, I extend a warm welcome to you all on the second day of 1 week Festival of Thoughts. As you all know, that M. Barbara Club of Department of Life Sciences has organized this Festival of Thoughts to celebrate Golden Jubilee year of our college, which was founded by Sant Pandit Nishchal Singh Ji Maharaj in 1973. It gives me immense pleasure to announce that in this series of lectures, today we had amongst us a renowned scholar, Dr. Deepak Rai Babbar. I feel honored to introduce the speaker of the day to you all. Dr. Deepak is working as an associate professor and chairperson in the Department of Zoology, Kurukshetra University, Kurukshetra, from the past 14 years. He did his BSc, MSc Zoology and PhD from Kurukshetra University, Kurukshetra. He secured gold medal with distinction in MSc Zoology. His area of interest is ornithology, animal ecology, and wildlife conservation. He has published 31 research publications in the form of research papers and book charters in journals of national and international repute, and also working on many more. He has published 4 books in the areas of different wildlife areas of Haryana. He has supervised 5 PhD students, and 3 PhD students are still working with him on different aspects of avian diversity and ecology of ungulates in different areas of the state of Haryana. He has completed 1 research project
on macrovertebrate faunal diversity in district Kurukshetra, Haryana, and also working on second project of avian fauna of district Kurukshetra. He also delivered approximately 40 mighty talks on environment conservation issues at various platforms. He is also involved in wildlife awareness activities, and more than 250 postgraduate students have done their field visits training on identification of avian fauna during their masters under his guidance. He is a life member of Indian Science Congress Association and Indian Ecological Society. As co-curricular activity, he has been member board, member academic council, vice president Kurukshetra University Teachers Club, vice president Kurukshetra University Teachers Association, and is also on expert panel of many universities. Today, Dr. Deepak is presenting his talk on the topic environment conservation. So not taking much time, sir, I welcome you again and invite you for your presentation. Thank you, ma'am. Thank you. Am I audible, ma'am? Yes, sir, you are audible. Okay. So I will start. Sabhi ko namaskar. Good afternoon to everyone. Respected Director Dr. Vrinder Gandhi ji from Guru Nanak Girls College, Principal Dr. Anu Atreja ji, respected members from the management, conveners Dr. Grinderjeet Kaur, Madam Dr. Tarandeep Kaur, Mrs. Deepika Sharma, my senior Dr. Gyan Bhushan, who is present here, other members of the organizing committee of this event, technical team, and dear students and participants. First of all, I am thankful to the management and administration of Guru Nanak Girls College, Yamunanagar, for giving me this opportunity to share my views on the important issues of the environment conservation. I am also thankful to Dr. Tarandeep for inviting me as a guest lecture for this guest lecture and introducing me so beautifully. I'm also give my congratulations to the organizers for planning of this event on the Golden Jubilee celebration of the college. As we know, threats to wildlife and environment increasingly alarmingly over the years. To mitigate these problems, the Indian society always played a vital role in the conservation. If we look at the Haryana, who can forget the role of Bishnoi society, and who can forget the roles of the peoples, Amrita Devi especially in the Chipko movement in the southern Haryana particularly, and in the state of the Rajasthan as well. And if we see the Amrit Vani of our sons of the different religions like Sikh Dharam, like Christianity, like Muslim Dharam, many people, many sants, they discussed about the different roles and the different areas of the environmental conservation in their Amrit Vani. So in Punjab and northern Haryana especially, our Sikh Dharam Gurus and Guru Granth Sahib Amrit Vani, they are spreading the message of environmental conservation from many centuries. So due to our religion, due to our spiritualism, and due to government initiatives towards environmental, India is always a global leader in the area of environmental conservation. So by this concept, today I will discuss about the topic of the environmental conservation concept, history, Indian scenario, and art of identifications. So I always fond of this kind of environmental issues because environment is a very big area in our everyone life. So the first question by starting this presentation is why India is important from the environmental point of view. Am I audible, madam? Yes, sir. Okay. The first point is that why India is important from the environmental point of view. पर्यावरण की दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण क्यों है? If we look at the diversity, about 2% of this our area, geographical area, that account for the 7% of the global diversity from the throughout the globe. So
India has a geographical area of 2.4%, but we have 7% global diversity. Out of this global diversity, we have about 1 lakh, approximately 1 lakh 2,000 species, including mammals, birds, reptiles, amphibians, and insects. If we look at this picture, and if we look at the different realms of the world, then see the location of the India. This India is located at the junction of the three realms. One is Palearctic, other one is Ethiopian, and the third one is Oriental. If we see the rule of edge effect or the ecology, when any area which is at a junction, the diversity of that area is particularly more. So due to the geographical location of India, we are very important from the environmental point of view. So this geography is very important for us. If we look at this map, and these green areas are the different 17 countries which have been assigned the status of the mega diversity country. So India is at the number 7. So in these 17 countries, 60 to 70% of the world biodiversity, they are present in these countries. So these green areas are very important from the environmental point of view, and India is one of the countries, so we are very important at the environmental point of view. Other countries are like the Australia, Brazil, China, Colombia, Ecuador, and many more. But particularly India is very important because we have 2.4% area, and we account for 7 to 8% of the biodiversity, and we are the mega diversity country. So we are very important from the environment and the wildlife point of view. If we look at the map of the India, so we have 10 biogeographical zones in the name of Trans-Himalaya, Himalaya, Gangetic Plains, Northeast, Deccan Peninsula, Coast, Western Ghat, semi-arid, and the desert. These all zones, they have different and the distinct climatic conditions. So every zone has a unique key species, every zone has a unique particular climatic factors. So due to these combination of these different zones, India is a unique place from the biodiversity point of view. If we look at the further classification, these geographical zones further divided into the biotic province, and these 27 biotic province furtherly, they contribute a number of wildlife diversity, a number of wildlife species to the Indian continent. So India is very, very rich at geographical point of view and very, very rich at the biological point of view. If we look at the main characteristics of the Indian environment, अगर हम Indian environment की important विशेषताओं को देखें, तो वर्ल्ड के अंदर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें 3 हॉटस्पॉट जो है इंडिया के अंदर है. वन इज द वेस्टर्न घाट, second one is the eastern Himalaya, and the third one is the Indo-Burma region. So out of the 34 world biodiversity hotspots, we have 10% hotspots of the world. We have approximately 3 hotspots in the Indian subcontinent. We have mostly 7.6, approximately 8% of the mammals, 12.6% of the birds, about 6% of the reptiles, and about 11% of the fish species throughout the globe. So we are very important. And if we look at the large size charismatic mammals, then Asian elephant, Indian rhinoceros, famous Royal Bengal tigers, and the endangered Asiatic lions, these species, they are present particularly in India. So India is very important from this kind of this point of view. If we see our scientific as well as the cultural religious values relationship to the environment, then we are very rich. Our culture is very rich. If we see the Guru Bani, Guru Granth Sahib में एक just दोहा है कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत. इसको हम सब जानते हैं कि एयर इज द गुरु, वाटर इज द फादर, एंड अर्थ इज द ग्रेट मदर ऑफ ऑल. तो गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार और भारत के जितने दूसरे धर्म हैं, सबके अनुसार सभी जीव जंतु, वृक्ष, नदी, पर्वत, सभी को जो है ईश्वर का रूप माना गया है. और हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, हमारी जो कल्चर वैल्यूज हैं, इस एनवायरनमेंट के जो है एक एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की तरफ जो हमें मोटिवेट करती है. इसी वजह से जो इंडिया है एक ग्लोबल लीडर के रूप में है, और हमारा जो इंडियन एनवायरनमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. If we see at the positive point of the Indian biodiversity, then endemism is the important factor for any country,
Then if we look at the Indian diversity, then 12% of the Indian mammals, they are endemic to India. And if we look at the amphibians, then about 56% amphibians, they are endemic to India. If you look at the plant and the reptiles, they are about 33 and 45% respectively. So in Indian diversity, the degree of endemism is up to a greater extent. So degree is very much, endemic degree is very much. So Indian diversity, Indian environment, they are very important from the conservation point of view, because these species are endemic to our ecosystem. So they play important role in different kind of things. Am I audible, madam? Yes? Am I audible? मैडम मैं कट गया क्या? अच्छा, आपको किस स्लाइड तक गया था, ये कुछ बता सकते हैं? ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो 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 प्रॉब्लम. Yes, am I audible? Am I audible, madam? Yes, sir, you are audible. Okay, okay, okay. Actually, in the online, these are the very common issues. So, Yes, sir, yes, sir. Sir, your screen is not visible. Okay, I am sharing. I am sharing. Yes, sir. Yes, see, madam. Yes, madam. Is it visible? Yes, sir, it is visible. Okay. Okay. I was discussing about the different endemic species of the India. If we look at the Indian diversity, then our mammals, amphibians, reptiles, and our plants, including birds, they are endemic to our Indian environments. So if we look at the environment of any country, then if more the endemism, the more the origin of the species at that particular area. So we are very lucky and very rich in this kind of the view that a number of endemic species, they are present to the Indian environment. If we see our ancient history, then the India was in our Vedas, in our Dharma, India was a very, very global leader in the term of the this biodiversity conservations. But in after and the pre-independence, there was some stories like Raja, Maharaja, they mostly destroyed our habitat, they mostly destroyed the jungle. So in my presentation, I am taking just the history of conservation in India at the government level. After 1947, when the India became independent, then a number of committees, a number of people, a number of government initiatives, they have been taken at different stages, and all these measures and all these initiatives, now they are taking majority of shape at the global level in the terms of the environmental conservation. If we look at the history of conservation in India, then at the Indian independence, private ownership, agriculture, and the Jhum cultivation, these three factors majorly destroyed our forest habitat. हमारे जंगलों को खत्म करने के लिए तीन ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जो मोस्टली लैंड था वो प्राइवेट ओनरशिप के साथ था, राजाओं के पास था, वो शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, और एग्रीकल्चर के लिए जो है हमें लैंड को जो है क्लियर करना होता था, और नॉर्थ ईस्ट में जो है झूम कल्टीवेशन के कारण जो है हमारा जितना भी फॉरेस्ट हैबिटेट था उसको बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन मिला. तो ये इंडिया की कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है जानना. इसी चीज को देखते हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी सरकार ने इन 1952 they constituted established a central board of wildlife, and this board they started meeting in 1952, and in its first meeting in the Mysore,
the name of this board was changed into IBWL, Indian Board of Wildlife, due to its nationwide coverage. तो इसका जो है नाम बदल के सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का पहली मीटिंग में नाम बदल के इसका नाम रख दिया गया था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। और ये जो बोर्ड था ये बायोडाइवर्सिटी से, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे इनको प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता था। और इस बोर्ड ने बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, और जो सबसे पहली रिकमेंडेशन थी उसके थ्रू 1955 में न्यू दिल्ली के अंदर नेशनल जूलॉजिकल पार्क का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो है इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन के ऊपर दोनों पे जोर दिया गया। और 1955 में पहली बार न्यू दिल्ली के अंदर नेशनल जूलॉजिकल पार्क की जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई। इन 1969 IUCN का एक कॉन्फ्रेंस जो है न्यू दिल्ली में हुआ, और हमारी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस कॉन्फ्रेंस में जो है पॉवर्टी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर जो है अपना एक स्पीच दिया था। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे इंडिया के अंदर टाइगर हंटिंग के ऊपर जो है कंप्लीट बैन कर दिया गया। तो दिस ईयर वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया फॉर द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस एट द वर्ल्ड लेवल इन 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के कारण जो है हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में थ्रू आउट द ग्लोब वर्ल्ड लेवल पर जो है बात करने का पता चला। अगर मैं इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करूं तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की रिकमेंडेशंस के कारण सबसे पहले 1972 में हमारे इंडिया का सबसे पहला एक्ट, जिसको हम बोलते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो है शेप में आया। और सबसे पहले इट वाज इनेक्टेड इन 1972। इसके बाद पोचिंग, किलिंग सबको जो है उसको बैन कर दिया गया, और वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स की फॉर्मेशन की गई। और 6 शेड्यूल के जो एनिमल्स थे उनकी किलिंग के लिए, उनकी पोचिंग के लिए अलग अलग जो है प्रिजनमेंट और अलग अलग जो है फाइन्स की जो है गवर्नमेंट ने जो है इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है व्यवस्था की। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। इन 1973 this project tiger was launched in the 9 tiger reserves of the India. So this was the mega project, and in 1973 in the 9 tiger reserves of the India हमारे भारत के अंदर जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। इसी तरह से 1980 में सबसे पहले फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेटअप किया गया। और 1984 में जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब उनकी डेथ हुई और उनके बाद राजीव गांधी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, तो उन्होंने 1984 में इस डिपार्टमेंट को जो है एक मिनिस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। और तब से जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो हमारे देश में काम कर रही है। और इसी मिनिस्ट्री ने 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को जो है लागू किया। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये इंडिपेंडेंट इंडिया में कंजर्वेशन को बचाने के लिए किए गए। और हमारा सबसे पहला जो लॉ था 1972 में आया, लेकिन हमने जब पर्यावरण इन्वायरमेंट एक्ट की बात की तो 1986 के अंदर जो है हमारा एक्ट आया। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो अपने इनिशिएटिव करती रहती है, हमेशा करती है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को जो उसकी इमेज को सेटबैक लगा 2005 में, बहुत बड़ा सेटबैक जो है इंडिया को लगा कि जब राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक रिपोर्ट आई इंटरनेशनल लेवल पे कि सारे टाइगर जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं। इंडिया ने इसको अपोज भी किया, बट दिस वाज ए ग्रेट ट्रेजेडी एट द इंडियन लेवल कि 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 9 रिजर्व में लॉन्च हुआ था, लेकिन 2005 आते आते सरिस्का जो है टाइगर लेस हो गया। उसके बाद दोबारा प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर अच्छे तरीके से काम हुआ, और अभी जो 2018 का सेंसस आया है तो हम ये कह सकते हैं एक प्राउड के साथ कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स है वो इंडिया के अंदर इंक्रीज हो रहा है। और जो जितनी भी हमारी नियर बाई कंट्रीज है या वर्ल्ड है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो इंडिया के अंदर है। अगर हम 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो जो ये हमारी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसका नाम बदल के फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कर दिया गया। तो दिस वाज द चेंज। नाउ आज के दिन भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है पर्यावरण कंजर्वेशन के जितने भी इश्यूज होते हैं, वाइल्ड लाइफ के जितने भी इश्यूज होते हैं, इन्वायरमेंट के जितने भी इश्यूज होते हैं, वो इनको देखती है। और
ये जो है हमारे कंट्री के अंदर जो है पूरा इन्वायरमेंट की दिशा में जो है पूरा काम करी है। इफ वी लुक एट द डिफरेंट एक्ट एंड द डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ दिस आवर कंट्री इंडिया, तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्री इंडिया in 1927 there was the Indian Forest Act, but in the independent India in 1972 there was the first act which are called as the Wildlife Protection Act 1972. After that there was the Forest Conservation Act 1980. After then there was the Environmental Protection Act, and now the recent two acts are very powerful and important act are the NGT, which was enacted in the 2010, and now in 2016 the CAMPA Act. Actually basically this act is very important for the development kind of activities. So nowadays many state governments, they are doing their development initiatives during the under the aegis of this CAMPA Act. So these are the important acts and the legislation and the policies in India which are related to environment. If we see at the global level, there are 5 important conventions like CITES, IUCN, IWBC, International Whaling Commission, and the UNESCO WSC, and the CMS, Convention on the Migratory Species. And I'm happy to share that India is the party signatory of all the five conventions. So at the global level, the presence of India is very, very important. We are a strong contender of environmental conservation at the global level. If we see the different wildlife project of the India, then Project Tiger was initially started at the Jim Corbett National Park in the 1973. This was the important act, this was the important project which was started in the 9 tiger reserves of the India. Then Project Gir was started in 1972 at the Gir National Park. Then Project Handul, it was started in Jammu and Kashmir. Then the Crocodile Breeding Center schemes, and according to these schemes, it was started in 1975 in Odisha, and in Haryana there is also one crocodile breeding center in the district Kurukshetra in village Bhor Sayeda. So according to this scheme, we got one breeding center in Haryana also. Then Project Red Panda, then Vulture Recovery Plan, it was started in 2006. So according to this plan, Haryana also has the Asia's first vulture conservation breeding center at the Pinjore, Haryana. So we have important wildlife plans in our state, like Crocodile Breeding Sanctuary, like this Vulture Recovery Plan. So these are the important. Then in Himachal and Jammu and Kashmir, the project Snow Leopard was started in the 2009. So these are the very important project of the wildlife and the environment which are running in the India and different state of the India. If we look at the present status, अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, आज प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें और रिसेंट डाटा की बात करें, तो इंडिया के अंदर आज की डेट में 106 नेशनल पार्क, 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 99 कंजर्वेशन रिजर्व्स, 218 community reserves, total 987 protected areas they are present in the Indian subcontinent, Indian country of, we can say that in India. So if we see the percentage of this protected area, then 5.26% of the total geography of India, they are under the shape of the protected area. So we have 987 protected area and 5% of the geographical area of India is under the protections. In these protected area, there are different categories like national park, wildlife sanctuary, and many key species, many biodiversity point of view, many plant species, many animal species, they are under the conservation initiative and the different plan of the conservation according to these protected area network. If we see the sequence from the year 2000 to 2021, so this is the number. In year 2089 national park was in India, but now the number of national park is 106. If we see the total number, then 574 was the protected area in 2000. In the last 20 years, approximately 400 new protected areas are established in India. So now the Indian government and Indian people, Indian society, they are thinking about the environmental conservation. आज हर आदमी,
हर स्कूल के करिकुलम में, हर कॉलेज के करिकुलम में, हर सोसाइटी के अंदर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। और पिछले 20 सालों में इन्वायरमेंट को लेके पूरे विश्व और इंडिया में जो है बूम आया है, और उसकी वजह से जो है हमारे कंट्री के अंदर भी जो है प्रोटेक्टेड एरिया का जो स्टेटस है वो बार बार इंक्रीज हो रहा है। इफ वी सी द इम्पोर्टेंट साइट्स इन इंडिया, then 52 tiger reserves they are working in India, but at the time of the project Tiger in 1973 they were 9, but now 52 tiger reserves they are working, they are present. 32 elephant reserves are present, 18 biosphere reserves are the present, 49 Ramsar wetland sites they are present, 7 natural world heritage sites they are present, 30 cultural world heritage sites they are present. And if we look at this number, दिस 467 इंपोर्टेंट बर्ड एरिया जिसको हम IBAs भी बोलते हैं, और इंडिया के अंदर 467 है, और हरियाणा के अंदर लगभग 6 IBAs जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे इंडिया का एक स्टेटस है जो हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में और डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी रिजर्व साइट्स के बारे में बताते हैं। इफ वी लुक दिस मैप ऑफ इंडिया, see these blue dots. These blue dots are the 52 tiger reserves in the map of India. If we look at the Punjab, Haryana, then there is no tiger reserve. If you look at the Jammu Kashmir, Ladakh and Himachal, then there is no tiger reserve. But if you look at the Uttarakhand and this Uttar Pradesh and this Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra area, this central India is very important range of the tiger reserves. तो आप, और साउदर्न इंडिया आल्सो, तो हमारे यहाँ जो है टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जो ये ब्लू डॉट्स आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये 52 टाइगर रिजर्व्स हैं जो आज की डेट के अंदर जो है इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। हम अगर रामसर साइट्स की बात करें, रामसर कन्वेंशंस, आपको याद हो ईरान में एक शहर है जिसको रामसर बोलते हैं। 1981 में वहां पे एक कन्वेंशन हुआ जिसको हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट कन्वेंशन पूरे वर्ल्ड के अंदर द एक्वेटिक बॉडीज ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उनको चिन्हित किया गया, और आज की डेट में आपको मैं सूचित कर दूं कि 49 रामसर साइट्स दे आर प्रेजेंट इन इंडिया। अभी हरियाणा में पहले कोई नहीं थी, लेकिन अब हरियाणा में भी जो है ये 2 रामसर साइट्स जो है अभी बनाई गई हैं। अभी रिसेंट लास्ट ईयर 2021 में आई है, जिसमें एक हमारा नेशनल पार्क भी है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करके किया गया है। और ये जो टोटल नंबर है, दिस 49 दे आर द रिप्रेजेंटिंग इन द ब्लू डॉट्स। तो ये हमारे इंडिया के अंदर जो है ये सारी रामसर साइट्स प्रेजेंट है। एंड दीज रामसर साइट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्वेटिक हैबिटेट, they are very important for the birds, they are very important for the marine turtles, they are very important for the dolphins, they are very important for the whales। तो ये सारी जितनी भी एक्वेटिक बॉडीज हैं ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिया के अंदर जो है प्रेजेंट है। इफ वी लुक एट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आई ऑलरेडी टोल्ड दिस ईस्टर्न हिमालयाज, दिस टोटल हिमालय, दिस वेस्टर्न घाट एंड दिस इंडो बर्मा रीजन, these 3 areas are with the mega biodiversity। इन 3 एरिया में इंडिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। कुछ बुक्स में 4 का भी दिखाया गया है, लेकिन हम उसको 3 ही मानते हैं, मेजरली बुक्स तो इनको 3 मानती हैं। तो 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया के अंदर प्रेजेंट है जो हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी के बारे में, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बताती है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, आप लोगों को पता होगा हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क जो है वो प्रेजेंट है। 1989 में सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, और यमुनानगर के लोग बड़े लकी हैं कि उनके पास जो है बहुत पुराना और बहुत हेल्दी एक नेशनल पार्क है जिसको हम कलेश्वर नेशनल पार्क बोलते हैं। ये यमुनानगर में 2003 के अंदर जो है ये बना था। लेकिन अगर हम कलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 1996 से है। आज की डेट में कुछ एरिया कलेश्वर नेशनल पार्क की फॉर्म में है, कुछ एरिया कलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फॉर्म में है। तो हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीर शिकारगा पंचकुला में, चिलचिला कुरुक्षेत्रा में, नाहर रेवाड़ी में, भिंडावास झज्जर में, खापड़वास झज्जर में, और खोली रतन पंचकुला में। और इसके साथ ही 2 कंजर्वेशन रिजर्व जो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, बाद में इनको जो है डीनोटिफाई कर दिया गया 2007 में, सरस्वती प्लांटेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व एंड द बीर बड़ा वन। ये हमारे हरियाणा के अंदर जो है
ये एरिया जो है वाइल्ड लाइफ के एरिया से प्रेजेंट है। और यमुनानगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और खुशी की बात है कि जो ये क्लेसर नेशनल पार्क है ये एक नेचुरल फॉरेस्ट हैबिटेट के साथ है। बाकी जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं हरियाणा में, या तो वाटर बॉडीज हैं या वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, तो नेचुरल फॉरेस्ट के साथ जो है क्लेसर, एंड क्लेसर इज एट द जंक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड द हरियाणा आल्सो विद उत्तर प्रदेश, सम एरिया विद उत्तर प्रदेश आल्सो। तो उस जंक्शंस पे यमुना नदी के रिवर के किनारे है, तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ग्लेशियर नेशनल पार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हरियाणा में कम्युनिटी रिजर्व का नंबर देखें तो 2019 में 3, 18 में 1 और 17 में 1, तो टोटल 5 कम्युनिटी रिजर्व जो है हरियाणा के अंदर है। और अगर हम टोटल प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो 11 and 5, 16 protected areas are present in India, this Haryana. 987 they are present in India, but 16 protected areas they are present in Haryana. और ये एरिया जो है हरियाणा के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन की बात करूं तो हरियाणा में हिसार के अंदर एक डियर पार्क, भिवानी के अंदर मिनी जू, रोहतक के अंदर जू और पिपली कुरुक्षेत्रा के अंदर मिनी जू और 5 ब्रीडिंग सेंटर्स जिसमें चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कायरू रेवाड़ी, दिस क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर कुरुक्षेत्रा, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर दिस पिंजोर, फिजेंट ब्रीडिंग सेंटर मोरनी and the peacock and the chinkara breeding center rewari. These 5 breeding centers they are present in the state of Haryana. इसके अलावा ये 6 important and the protected this potentially important IBS जो है जिसमें बसई वेटलैंड, विंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्लेशियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, वेटलैंड ऑफ द यमुना रिवर एंड द डीगल वेटलैंड, ये 6 ऐसे एरियाज हैं जो हरियाणा के अंदर पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो काम कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा एक आइडिया बताया कि स्टेटस ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया हरियाणा में कैसा है, इंडिया में कैसा है। ये स्लाइड्स आपको हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है, थ्रेट्स क्या हैं, किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, इस स्लाइड्स के अंदर बताया गया है कि एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स भी हो सकती हैं, नेचुरल थ्रेट्स भी हो सकती हैं, जिसमें हैबिटेट लॉस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, pollution, natural disaster, many intrinsic factors. So these are the important factors which are on by these factors our biodiversity, our environment, they are going to degrade nowadays with the alarming rates. ये स्लाइड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम कंजर्वेशन में हम इतने पीछे क्यों हैं? अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप देखिए कि जब भी हम किसी एरिया में कोई कंजर्वेशन प्लान बनाते हैं, कोई भी आप लोगों ने 10% लॉ ऑफ बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफर सुना होगा कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाती है तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। उसी बेस पे एक लॉ डिजाइन किया गया है जिसको हम बोलते हैं 10% लॉ ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अगर कंजर्वेशन के लिए साइंटिस्ट 100% रिकमेंडेशन करता है, 100% प्रपोजल बनाता है, जब ये प्रपोजल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चले जाते हैं तो 90% रह जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से जब वो पॉलिटिशियंस के लेवल पे चले जाते हैं तो 1% रह जाते हैं, और जब तीनों मिलके काम करते हैं धरातल पे तो उनका एग्जीक्यूशन 0.1% रह जाता है। सो दिस इज द मेन फैक्टर कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो कुछ थोड़ा सा काम गवर्नमेंट कर रही है और ज्यादातर काम हमारी सोसाइटीज कर रही है, हमारे धर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारा जो सिख धर्म है उसमें आपने गुरु हरराय जी के बारे में सुना होगा। पंजाब के अंदर जो है कोई भी नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है, वहां या तो वाटर बॉडीज है, यहाँ पे आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। अगर आपने आनंदपुर और कीर्तपुर शहर के बारे में सुना हो तो जो हमारे सिखों के गुरु हरराय जी थे, उन्होंने उस आनंदपुर शहर को झीलों का शहर बनाने में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो हमारा जो समाज है, हमारा जो धर्म है, हमारी गवर्नमेंट से ज्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस एग्जीक्यूशन को बचाने की जरूरत है, इस एग्जीक्यूशन को करने की जरूरत है। जितना ज्यादा एग्जीक्यूशन होगा उतनी हमारी धरती बढ़ेगी। अब सवाल आता है कि हम किस किस तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं। हम इन सिटू कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, हम एक्स-सिटू कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे मीन्स हैं
जिसमें मैंने आपको प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्किंग का स्टेटस बताया, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। और भी आजकल बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, नई नई जेनेटिक टेक्निक्स हैं, जीन बैंक्स हैं, सीमन बैंक्स हैं, जिनके थ्रू जो है हम बायोडाइवर्सिटी को जो है कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि सॉल्यूशंस क्या है। अगर ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसी तरह से डिप्लीट होती रहेगी या कुछ सॉल्यूशंस भी होगा। देखिए, जब भी हम कुछ डिस्कशंस करते हैं उससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकल के आता है। एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल लेवल पे कि वर्ल्ड के पास हर पर्सन के पीछे 422 ट्री है। अगर हम वर्ल्ड को असेस करें, पूरे विश्व को असेस करें, तो हर आदमी के पीछे जो है 422 पेड़ जो है ये काउंटिंग आते हैं। लेकिन अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा में हर पर्सन के पीछे लगभग 10,000 पेड़ है, ग्रीनलैंड में 5,000 है, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 3200 है, यूनाइटेड स्टेट में 700 पेड़ पर पर्सन के पीछे है। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें, दिस इज जस्ट अबाउट द 28 ट्रीज पर पर्सन। तो हमें एक तो ये पेड़ का नंबर, पेड़ों को लगाना होगा और हमें एंडेमिक पेड़ों को लगाना होगा। हम क्या करते हैं, घर में जो है आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं। जब तक हमारे इकोसिस्टम में एंडेमिक हमारी वेजिटेशन कवर नहीं आएगा, हमारे एंडेमिक ट्रीज नहीं आएंगे, हमारी श्रब एंड हर्ब्स नहीं आएंगी, तब तक हमारा इकोसिस्टम हेल्दी नहीं होगा। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया वो है वनरोपण, एफोरेस्टेशन। हमें वनों को उसका मैक्सिमम जो है वनों को लगाना है, और वनों को लगाने के साथ उनके एरिया के साथ साथ उनकी जो क्षेत्रफल के साथ साथ उनकी जो क्वालिटी है वो भी इंपॉर्टेंट जो है वो मेजर करती है। तो हमने उसकी क्वालिटी को भी देखना है। सेकंड है पॉपुलेशन रेगुलेशन। आज हमारी पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास जा रही है, तो हमने अपनी पॉपुलेशन को रेगुलेट करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो हम वन लगाते हैं मानसून के पीरियड में, या हम पॉपुलेशन रेगुलेशन का स्लोगन देते हैं। हमें इन दोनों को जब तक हम इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक हम इनको सिंक्रोनाइजेशन में नहीं करेंगे, हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो हमने एक हाथ पे वनों को लगाना है और दूसरे हाथ पे पॉपुलेशन को रेगुलेट करना है। अगर हमें इनको अलग अलग किया तो मे बी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का हमारा मोटिव पूरा ना हो, और अगर हम इन दोनों को साथ साथ करेंगे तो हम अपने इंडिया में ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने एरिया में कहीं ना कहीं जो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अगर आपको याद होगा कि हमें गवर्नेंस ज्यादा करना है लेकिन मंत्रियों की संख्या कम करनी है। यही एक स्लोगन जो है इकोलॉजी के ऊपर भी जो है बिल्कुल फिट बैठता है कि हमें मिनिमम इंटरफेरेंस टू नेचर एंड मैक्सिमम कंजर्वेशन टू नेचर। हमें प्रकृति को, हमें नेचर को मिनिमम इंटरफेयर करना है। अगर हमारा इंटरफेरेंस कम होगा, हमारा एफोरेस्टेशन ज्यादा होगा और हमारी पॉपुलेशन रेगुलेशन होगी, तो हमारी जो पृथ्वी है उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारी पृथ्वी को जो है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कोई डिग्रेड नहीं कर पाएगा। और जितने भी प्रेशर्स आएंगे वो सारा जो है हमारा अर्थ जो है वो उसको जो है सोल्व कर सकता है। उन प्रॉब्लम्स को, जितने भी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, एफोरेस्टेशन एंड द पॉपुलेशन रेगुलेशन। अब मैंने अभी एक हाथ में आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया, और जब तक आप इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करना सीखेंगे, जब तक आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे या उस एरियाज के बारे में, वहां के एनिमल्स के बारे में नहीं सीखेंगे, तो आपके लिए इन्वायरमेंट की बात करना बेमानी है। अब मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट और फोटोग्राफिक तरीके से 5-10 मिनट में कुछ पिक्चर्स के माध्यम से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, और आप देखेंगे कि वो पिक्चर्स हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देती हैं। अगर मैं आपको फील्ड की बात करूं, तो फील्ड में जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, मेजरली हम उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। हर्बीवोर्स जो घास खाते हैं, और दूसरे कार्निवोर्स जिनको हम कहते हैं मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी दो फैमिली होती है, एक को हम बोलते हैं कैनिडी और दूसरी को बोलते हैं हम फेलिडी। कैनिडी जो फैमिली है जिसको हम डॉग फैमिली बोलते हैं, और फेलिडी फैमिली को हम कैट फैमिली बोलते हैं। तो जितने भी टाइगर, लायन, चीता, वो सारे कैट फैमिली में आते हैं। जितने भी डॉग, जैकाल, आपका हाइना, ये सारे जो है डॉग फैमिली के अंदर आते हैं। इसी तरह से जो घास खाते हैं उनके दो ग्रुप होते हैं, दो ऑर्डर होते हैं। एक को हम बोलते हैं आर्टियोडैक्टाइला, दूसरे को हम बोलते हैं पेरिसोडैक्टाइला।
ये जो आर्टियोडैक्टाइला है, आज की डेट में कुछ बुक्स इसको सेट आर्टियोडैक्टाइला भी लिखती हैं कि सिटेशिया और आर्टियोडैक्टाइला को मिला के जो है सेट आर्टियोडैक्टाइला। और आर्टियोडैक्टाइला में भी दो ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट है, एक को हम बोलते हैं बोविडी जिसमें एंटीलोप्स आते हैं, और एक को बोलते हैं हम सर्विडी जिसमें डियर्स आती है, हिरन आती है, और इसमें एंटीलोप्स आते हैं। अब इन एनिमल्स को हम इनके पिक्चर्स के थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इनके पिक्चर्स अवेलेबल ना हो फील्ड के अंदर और इनके इनडायरेक्ट साइंस अवेलेबल हो, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उनको देख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको जो है 5 to 10 स्लाइड्स में एक छोटा प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूं। अब आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आपको ये दिखाई देगा कि दिस इज अ पैड एंड दीज आर द टोज, और यहाँ पे टोज के ऊपर जो है क्लो मार्क्स हैं। या देखिए देखिए, जब भी आपको किसी भी एनिमल का इस तरह का पांव का निशान, दीज आर द पग मार्क्स, कैनिड पग मार्क्स एंड द फैलिड पग मार्क्स, जब भी आपको कहीं जमीन के ऊपर इस तरह के एनिमल्स के पंजों के निशान मिलते हैं, तो सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि पंजे के ऊपर क्लो है या नहीं है। अब आप देखिए, यहाँ पे क्लो है, यहाँ पे नहीं है। अगर क्लो प्रेजेंट है वो एनिमल्स कैनिडी फैमिली से होगा, अगर क्लो प्रेजेंट नहीं है वो एनिमल फैमिली फैलिड फैमिली से होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, ये एक सिंपल सा क्लो का निशान जो है वो हमें बता सकता है कि कैनिड पग मार्क्स की एनिमल जो है वो कैनिड था या एनिमल जो है वो फैलिड था। तो इस छोटी छोटी चीजों को जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसको देखिए, टाइगर के केस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम किसी एनिमल की, किसी स्पीसीज की जेंडर के बारे में बताते हैं तो हम देख के कहते हैं कि दिस इज मेल और दिस इज फीमेल। बट टाइगर के केस में अगर दीज आर द पग मार्क्स ऑफ द टाइगर, अगर टाइगर के पग मार्क्स रेक्टेंगल्स के अंदर हैं, आयत की शेप में है और स्क्वायर की शेप में है, तो आप इमीडिएटली आइडिया लगा दीजिए कि जो स्क्वायर वाला पग मार्क्स होगा वो मेल का पग मार्क्स है, और जो रेक्टेंगल वाला पग मार्क्स होगा वो फीमेल का पग मार्क्स है। तो बाय वाचिंग पग मार्क्स, बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज पिक्चर्स विदाउट seeing the animals, we can identify this is the pug marks of male tiger and this is the pug marks of the फीमेल टाइगर। इस तरह से जो है हम फील्ड के अंदर जो है पग मार्क्स को देख के, इनडायरेक्ट साइन को देख के कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब पग मार्क्स जो है वो लेफ्ट पैर का है या राइट पैर का है, इसको हम बोलते हैं कि थंब रूल्स। देखिए, ये जमीन के ऊपर टाइगर का पग मार्क है, ये जमीन के ऊपर टाइगर का पग मार्क है। हम अपने हैंड्स को अगर उनके पैरेलल लगाएं, अगर पग मार्क्स की लीडिंग टोज हमारी लीडिंग टोज के बराबर में है तो वही हाथ जो है पग मार्क्स का है। तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई दिस इज ए लेफ्ट पग मार्क एंड दिस इज ए राइट पग मार्क। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थंब रूल और ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिंगर रूल वी कैन आइडेंटिफाई कि दिस पग मार्क रिलेटेड टू लेफ्ट लिम्ब एंड द राइट लिम्ब। देन अभी देखिए, हम लोग दो पांव पे चलते हैं, लेकिन जो कैनिड्स होते हैं या फैलिड्स होते हैं वो चार पांव पे चलते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये अगले वाले पांव का पंजा है या पिछले वाले पांव का पंजा है? उसके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी जो है डिजाइन की गई है। अगर दो फिंगर्स के बीच में लेस स्पेस है, गैप है, और ज्यादा गैप है, इसके बेसिस के ऊपर हम आइडिया लगा सकते हैं जो फ्रंट फिट होगा उसमें लेस गैप होगा और जो हाइंड फिट होगा उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा गैप होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गैप we can identify right front, we can identify right hind, we can identify left front, we can identify left hind, we can identify left and right, as well as we can identify male and female also। तो हम इस तरह से जो है पग मार्क्स को देख के, पिक्चर से जो है हम आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं। देखिए, अगर किसी आर्टिस्ट को पिक्चर के बारे में दिखाया जाए वो बताएगा बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, लेकिन किसी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को बताया जाए तो वो ये बता सकता है कि ये किस एनिमल की पिक्चर है, ये किस तरह का एनिमल, उसका जेंडर है, ये उसके किस पांव की पिक्चर। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हम इस तरह की पिक्चर से जो है पग मार्क से, या हम फील्ड में जो है हमारे जो इनडायरेक्ट साइंस होते हैं उनसे हम निकाल सकते हैं। ये एक लार्जर लेवल पे डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं टाइगर पग मार्क्स के दिखाए गए हैं कि अगर हमें इंडिविजुअल टाइगर टू इंडिविजुअल टाइगर आइडेंटिफाई करना है तो हम जो है टाइगर्स के 11 पैरामीटर्स, 12 पैरामीटर्स जो ये दिखाए हैं, इनके बेसिस के ऊपर जो है
हम एक इंडिविजुअल टाइगर से दूसरे इंडिविजुअल टाइगर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में मेथोलॉजी जो है काफी चेंज हो चुकी है और आजकल कैमरा ट्रैपिंग मेथोलॉजी है। तो जो टाइगर्स की जो स्ट्रिप्स होती हैं, थाई एंड बैक स्ट्रिप्स, उनसे भी जो है हम उनकी इंडिविजुअलिटी का जो है पता लगा सकते हैं। तो वो भी जो है आजकल काफी सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से जो है हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ यू लुक एट दिस पिक्चर इज सिमिलर टू टाइगर पग मार्क्स, बट सी हियर दिस लोब इज इंक्लाइंड, कट, शार्प कट। आप यहाँ देखिए, टाइगर के केस में अगर आप देखेंगे तो वहां पे स्मूथ एज था दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे एक जो है कट का निशान है। तो वी कैन आइडेंटिफाई ये लेपर्ड का है और टाइगर के केस में दोनों स्मूथ है। तो बाय दिस कट वी कैन आइडेंटिफाई द स्पीसीज। सिर्फ कट को देखना है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये टाइगर का पग मार्क्स है या वो लेपर्ड का पग मार्क्स है। इसी तरह से ये हाइना का है, देखिए ये ऊपर क्लो के मार्क्स हैं, तो हम ये कि ये डॉग फैमिली का है, और क्लो के मार्क्स नहीं है तो हम आइडिया लगाएंगे कि ये कैट फैमिली का है। तो ये हाइना का पग मार्क्स जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वुल्फ जो है वो डॉग फैमिली से आता है। यहाँ पे क्लो मार्क्स हैं, ये क्लो मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो किसी भी पग मार्क्स को देखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसकी शेप होती है। हर पग मार्क्स की एक पार्टिकुलर शेप होती है और उस शेप से जो है हम स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एंटीलोप्स के बारे में, जो भी हमारे शाकाहारी जो जानवर है उनकी बात करूं, तो अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड वाइड लगभग 84 एंटीलोप स्पीसीज प्रेजेंट है और अफ्रीका में अकेली 72 स्पीसीज जो एंटीलोप की मिलती हैं और इंडिया में 6 स्पीसीज एंटीलोप की मिलती है। एक्चुअली एंटीलोप होता क्या है, देखिए हम एंटीलोप को भी जो है ना डियर बोलते हैं, लेकिन डियर और एंटीलोप में डिफरेंट है। एंटीलोप के अंदर हमेशा हॉर्न होंगे एंड हॉर्न आर द परमानेंट स्ट्रक्चर्स, आपको ये याद रखना है। और जबकि जो डियर होते हैं वहां पे एंटलर्स होते हैं और एंटलर्स जो है हर साल जो है शेड ऑफ होते हैं, निकलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, दोबारा आते रहते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो 6 स्पीसीज एंटीलोप की मिलती है, हरियाणा के अंदर आपकी नील गाय, उसके अलावा इंडिया में 4 हॉर्न एंटीलोप, हरियाणा में ब्लैक बक, उसके अलावा इंडियन गजेल ये भी हरियाणा में मिलती है, तिब्बतन गजेल तिब्बत में, और तिब्बतन एंटीलोप, ये 6 एंटीलोप की स्पीसीज। और इन एंटीलोप की स्पीसीज को अगर हम देखें तो इनके जो हॉर्न्स हैं ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जो है होलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं लेकिन ये परमानेंट होते हैं, इसलिए हम इनको एंटीलोप कहते हैं। ऑन द अदर साइड्स अगर मैं डियर की बात करूं तो डियर के अंदर जो है एंटलर्स होते हैं और वो बोनी स्ट्रक्चर सॉलिड्स होते हैं और वो हर साल टूटते हैं और नए आ जाते हैं। तो ये एंटीलोप और डियर्स के अंदर फर्क होता है। तो इंडिया के अंदर जो है ये 6 एंटीलोप है और आपके हरियाणा में नीलगाय, ब्लैक बक और ये इंडियन गजेल, ये 3 एंटीलोप जो है ये हरियाणा के अंदर मिलते हैं और वर्ल्ड में जो है 84 एंटीलोप स्पीसीज प्रेजेंट है। अब आप ये देखिए, ये ब्लैक बक की मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं। मैं इस पिक्चर की बात करूंगा। ब्लैक बक इज एंटीलोप एंड दिस इज अ मेल ब्लैक बक बीयरिंग द हॉर्न। ये देखिए स्पाइरल हॉर्न है इसमें, इसको कृष्ण मृग और काला हिरन भी बोलते हैं। लेकिन जो फीमेल होती है उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है और उसमें हॉर्न एब्सेंट नहीं होते। तो वी कैन आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल ब्लैक बक ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटलर्स एज वेल एज बॉडी कलर। तो उसके बेसिस के ऊपर जो है हम हिरन मेल को और फीमेल को जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से नीलगाय के केस में दिस इज द अडल्ट नीलगाय बीयरिंग द हॉर्न एंड दिस इज द फीमेल नीलगाय बीयरिंग नो हॉर्न। तो इस तरह से हम मेल और फीमेल को जो है नीलगाय को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं डियर की बात करूं, ये 9 डियर स्पीसीज है जो इंडिया की मिलती हैं। अगर वर्ल्ड की बात करूं तो लगभग 54 डियर की स्पीसीज वर्ल्ड में मिलती हैं, जिसमें बारहसिंगा इंडिया के अंदर, बार्किंग डियर, हॉक डियर ये आपके कलेसर में बहुत मिलता है, कश्मीरी स्टैग, ब्रो एंटलर डियर, ब्लैक मस्क डियर, हिमालयन मस्क डियर, सांबर ये भी हरियाणा में मिलता है कई एरिया में, एंड द स्पॉटेड डियर ये भी चीतल ग्लेशियर में है। तो ये 9 डियर की स्पीसीज जो है वो इंडिया के अंदर मिलती है। और डियर में जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम एंटलर बोलते हैं। ये बोनी आउटग्रोथ होती है और हर साल जो है ये टूटता है, आ जाता है कुछ स्पीसीज में, कुछ स्पीसीज में फीमेल में भी होता है, कुछ स्पीसीज में सिर्फ जो है मेल के अंदर होता है। तो इस तरह से वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट डियर स्पीसीज। ये सांबर की डिफरेंट एज क्लास के बारे में बताया गया है कि सांबर को जो है हम मेल और फीमेल को जो है
किस तरह से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा 5 मिनट्स का एक ट्रेनिंग, आपको बहुत अच्छा ट्रेनिंग लगेगा। आप देखिए, आप जब अपने घर जाते हैं, अपने कॉलेज में जाते हैं, कहीं बाहर पार्क में घूमने जाते हैं, आपको हर जगह बर्ड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमसे ये पूछा जाता है कि ये कौन सा बर्ड्स है, तो हम जो है वो हमें पता नहीं चलता, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लोकल नेम तो पता है। हम ये बोल देते हैं चिड़िया है, कई तरह की चिड़िया बोल देते हैं, हम बोल देते हैं तोता है, कई तरह के तोते हैं, लेकिन उनके यूनिक फीचर्स क्या है जिसको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको 5-6 स्लाइड्स में जो है इसके बारे में बताऊंगा, एंड आई थिंक दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर हम बर्ड की पिक्चर को देखें तो ये बर्ड की बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है। ये जो पार्ट्स हैं इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं हम इसको वेंट बोलते हैं, रंप बोलते हैं, कहीं बैक बोलते हैं, कहीं मेंटल बोलते हैं, कहीं हेड बोलते हैं, कहीं नोस्ट्रिल बोलते हैं। इन्हें डिफरेंट बर्ड्स के पार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के बेसिस के ऊपर हम बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से हमारे आसपास जो है बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं सबसे पहले एग्जांपल आपको दे रहा हूं। क्या आप इस बर्ड्स को आपने कभी देखा है? बताइए, एनीवन? स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको पता है कि ये हरियाणा का स्टेट बर्ड है। इसको ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं, और ये जो है ये मेल है और ये जो है फीमेल है। तो मेल जो है उसके ये बैंड कलर को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों में कितना डिफरेंस है देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंड कलर वी कैन आइडेंटिफाई आवर स्टेट बर्ड। तो इसको हम ब्लैक फ्रैंकोलिन भी बोलते हैं, काला तीतर भी बोलते हैं। इसी के साथ एक दूसरा होता है जिसको हम भूरा तीतर बोलते हैं, ग्रे पार्ट्रिज बोलते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल अलग होता है। इसकी फीमेल और ग्रे पार्ट्रिज की फीमेल एक जैसी होती है, लेकिन उसमें एक छोटे से पॉइंट को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। देखिए, ये मेल है, इसके ये 3 पॉइंट देखिए। ये फीमेल है, इसकी जो नैप होती है गर्दन के पीछे एक मैरून बैंड होता है, और जो ग्रे पार्ट्रिज की फीमेल होती है उस पे ये मैरून बैंड नहीं होता है। तो इस मैरून बैंड को देख के हम फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इन दोनों को देख के हम जो है मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बर्ड्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और उनको देख के हम जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन का पता कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपने हर किसी ने इस स्पीसीज को देखा होगा, हर किसी ने इस पिक्चर को देखा होगा। इसको हम बोलते हैं रोज रिंग पैराकिट। इसको रोज रिंग पैराकिट इसलिए बोलते हैं, एक रोजी कलर का रिंग होता है इसके गले में। जिस भी स्पीसीज के या जिस भी तोते के गले में रिंग है, आप आंख मूंद के ये बोल दीजिएगा वो मेल है, और जिसके गले में रिंग नहीं है वो क्या होगा? फीमेल होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ एक रिंग को देख के हम बता सकते हैं कि दिस इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल। तो अब आगे से आप जब भी अपने घर में या कॉलेज में या कहीं आसपास पार्क में तोता देखें तो उसका ये रिंग जरूर देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है मेल है या फीमेल है। इसके बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए, ये रोज रिंग प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ पे रिंग एब्सेंट है, तो दिस इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल। तो इन छोटी छोटी चीजों को हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक पैच दिखाई दे रहा है, ये दूसरी प्रजाति है। अगर रिंग है और पैच है तो ये दूसरी प्रजाति का मेल है जिसको बोलते हैं अलेक्जेंड्रिन पैराकिट, और अगर इसके रिंग नहीं है और खाली पैच है तो ये अलेक्जेंड्रिन पैराकिट की फीमेल है। तो इस पैच के बेसिस के ऊपर जो है हम पैरट की जो है सेकंड स्पीसीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको देख के आप देखिए, यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे रिंग नहीं है, बट पैच दोनों में है। तो दिस इज अ मेल ऑफ अलेक्जेंड्रिन पैराकिट एंड दिस वन इज अ फीमेल ऑफ अलेक्जेंड्रिन पैराकिट। इसी तरह से ये प्लम हेडेड पैराकिट है, ये मेल है, ये फीमेल है। ये आपके कलेसर में बहुत मिलता है, उधर पोंटा साहिब की तरफ है, तो आप इसको बड़े ब्यूटीफुली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मेल है, ये फीमेल है, जिसको हम प्लम हेडेड बोलते हैं। इसी तरह ये आपने सबने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं कोयल। ये फीमेल कोयल है और ये मेल कोयल है। मेल कोयल की रिजेम्बलेंस हमेशा हमें कौवे की तरह लगती है, लेकिन उसकी आई का जो कलर होता है वो रेडिश होता है। अगर आपको रेडिश आई कलर और ब्लैक कलर का कुछ मिल जाए तो आप सोच लीजिए वो एशियन कोयल का मेल है, और अगर आपको इस कलर का कुछ दिखाई देता है तो आप सोच लीजिए कि वो कोयल का फीमेल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन वी कैन आइडेंटिफाई मेल कोयल एज वेल एज द फीमेल कोयल। इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई। ये आप देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हम पाइड किंगफिशर या लेसर पाइड किंगफिशर भी बोलते हैं।
इस पिक्चर को देखिए आप, यहाँ पे एक बैंड है, यहाँ पे भी एक बैंड है, और इस बैंड के नीचे एक रिंग है, लेकिन यहाँ पे रिंग नहीं है। अगर ये रिंग है तो मेल है, और ये रिंग नहीं है तो फीमेल है। तो हम इस तरह से छोटे छोटे कैरेक्टर्स को देख के बर्ड्स के अंदर मेल फीमेल इस तरह से जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये इसको हम बोलते हैं वुड पैकर। अगर वुड पैकर के बीक से लेकर पीछे तक रेड कलर के हेयर है, बट रेड कलर के हेयर सिर्फ ओनली टर्मिनल एंड पे हैं, तो ये फीमेल है, ये मेल है। बेसिस ऑफ दिस रेड कलर हेयर वी कैन आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल वुड पैकर। इस तरह से जो है हम वुड पैकर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम जो है हमारी लैब जो है अलग अलग तरह के उस पर काम करती रहती है। तो ये कुछ पेपर्स जो है हमारे इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में हैं, जो हरियाणा की लगभग हमने हर एक्टिविटी के ऊपर काम किया है। ये अलग अलग उसमें जो है पेपर्स कुछ है छपे हैं। तो मैं आप सबसे सिर्फ ये कुछ बुक चैप्टर्स हैं, मैं बस आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो इंडियन इन्वायरमेंट है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। यंग लोग स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत काम कर सकते हैं। हमको पेड़ भी लगाना है, जनसंख्या भी कम करनी है, और हमें अपने इस सुंदर से पर्यावरण को बचाना भी है। और इन सारे काम के लिए जो हमारी लैब काम कर रही है, मैं अपने स्टूडेंट्स और हमारा जो डिपार्टमेंट है इसको एक्नॉलेज करता हूँ कि जिनकी वजह से जो है हम ये काम कर पा रहे हैं। एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू कन्वीनर्स, आई एम अगेन थैंकफुल टू मिसेज तरनदीप कौर, एंड आई एम थैंकफुल टू प्रिंसिपल मैडम। आई एम आल्सो थैंकफुल टू डायरेक्टर मैडम एंड द मैनेजमेंट for giving me such a nice opportunity to interact with you people. Thank you very much. If you have any kind of queries, any question, you can raise, please. Thank you so much, sir. सर बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में आपने बच्चों को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ा। हमारे बीच एसटी कॉलेज के डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जुड़े रहे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसे सुना है। सर उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सो उन्होंने पूछा है, नंबर 1, डू यू थिंक इट्स हाई टाइम टू सेव और प्रिजर्व द सॉइल व्हिच हैज बीन पोल्यूटेड बाय द यूज साइंटिफिक प्रोडक्ट्स? Number 2, how long this soil will remain organic at the current rate of the use of scientific products? Number 3, what do you suggest to preserve organic nature of soil to stop it from converting into sand? Don't you think without saving organic nature of soil, all talk about environmental issues will not bear meaningful result? तो सर उन्होंने सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आशुतोष अंगिरस जी को नमस्कार, क्योंकि मैंने एक लेक्चर उनके वहां भी दिया था, उन्होंने मेरे को इन्वायरमेंट पे करवाया था बहुत साल पहले एमएचआरडी की तरफ से। तो उनके जो क्वेश्चंस है बेसिकली देखिए, जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एंड हम चाहे बायोटिक फैक्टर की बात करें चाहे अबायोटिक फैक्टर की बात करें, एक तीसरा फैक्टर जिसको बोलते हैं इडाफिक फैक्टर, बच्चों ने अगर पढ़ा हो तो सोयल टेक्सचर, सोयल होरिजन, ये सारा इडाफिक फैक्टर्स के अंदर आता है। और अगर हम इडाफिक फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज को देखें तो वेजिटेशंस के अंदर बायोटिक अबायोटिक फैक्टर जितने इंपॉर्टेंट है उतने इडाफिक फैक्टर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आज के डेट में जो सोयल पोल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमें दिख रहा है, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 20 to 30 ईयर्स बैक अगर हम देखें तो गांव में बहुत कम पैरालिसिस के केस होते थे, लेकिन अगर आप पिछले 10 साल 15 साल में देखें तो दैट ऑल पैरालिसिस केस का जो नंबर है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो सोयल जो है वो हमारी फूड चेन का एक हिस्सा है। और जो हम क्रॉप में जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो इतना हमारे सोयल इकोसिस्टम में वाटर के थ्रू और क्रॉप के थ्रू बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू जा चुका है कि उसकी वजह से उसके जो इफेक्ट हैं हमारी हेल्थ के ऊपर हेल्थ हैजार्ड्स के फॉर्म में आ रही हैं। अगर हमें सोयल को बचाना है तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर से बायो फर्टिलाइजर्स की तरफ जाना होगा, और दूसरा हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना होगा। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे सोयल इकोसिस्टम को बचा सकती हैं। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स का लेस यूज और ऑर्गेनिक काइंड ऑफ जो बायो पेस्टिसाइड जिसको हम बोल देते हैं उनको अगर हम करेंगे
उनकी एफिकेसी या एफिकेटिव वे में अगर हम करेंगे तो हम सोयल इकोसिस्टम की बात कर सकते हैं। और अगर सोयल इकोसिस्टम बचेगा तो वाटर इकोसिस्टम बचेगा, और वाटर अगर और सोयल दोनों बचेंगे तो हर्बीवोर्स बचेंगे, हर्बीवोर्स बचेंगे तो कार्निवोर्स बचेंगे, और जब ये दोनों बचेंगे तो अर्थ, प्लेनेट और मनुष्य बचेगा। तो बेसिकली सोयल इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमें बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, और उसमें एग्रीकल्चर मूवमेंट एंड एग्रीकल्चर मॉडिफिकेशन इज वन ऑफ द थिंग्स। तो हमें हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को चेंज करना पड़ेगा सोयल के इकोसिस्टम को बचाने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। अभी आपने बोला आशुतोष जी के आंसर के लिए कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज में श्रीलंका में फूड क्राइसिस चल रहा है, एंड वन ऑफ द रीजन फूड क्राइसिस के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग दी है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया था फर्टिलाइजर्स भी और पेस्टिसाइड्स भी, और अब लोगों को वहां पर 1400 रुपए किलो तो दूध हो रहा है, और अब आप ये देखिए वहां पर फूड आलू कितने महंगे बिक रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक, और इंडिया, अगर आप इंडिया की बात करो तो वो पॉपुलेटेड है एज कम्पेयर टू श्रीलंका। तो अगर आप पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को देखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा सुटेबल होगी। आप एक टेरेस गार्डनिंग की तरह तो यूज कर सकते हैं, बट श्रीलंका का एग्जांपल देखते हुए अब डर लगने लग गया कि इंडिया में इसको अगर आपने शुरुआत कर दी तो वही हाल ना हो जाए जो इस वक्त श्रीलंका भुगत रहा है। कोरोना एक फैक्टर है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्वेश्चन मार्क लग गया है सर। नहीं नहीं नहीं, ये आपके अकॉर्डिंग लगा है। आप मेरी बात सुनिए, शायद मैं आपको कुछ फुलफिल कर पाऊं। आप जो बात कर रहे हैं इसके मैनी वेज हैं। आप इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक में एक फूड क्राइसिस आया सर, उसमें उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। प्लीज लिसन में, ट्राई टू लिसन में। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आप इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि वहां दूध 1400 रुपए किलो हो गया है, या जो भी व्हाटएवर जो भी वहां वो है, बट according to organic farming, what the this organic farming affect on the ecosystem, अगर आप उसकी स्टडीज को देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने इकोसिक का नाम सुना है? इकोसिक, हाँ जी। इकोसिक अगर आपने उसके बारे में सुना हो, उसको पढ़ा हो, 2009 में ये फाउंडेशन जो है फॉरेन में एस्टेब्लिश हुई थी, और इस फाउंडेशन ने आपके जो सबसे बड़ा जो सिख धर्म का गुरुद्वारा है, जिसको हम अमृतसर जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, वहां पे डिस्कस करके, जो भी आप ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक दिस गोल्डन टेम्पल में लगभग एक दिन में 2-2 लाख आदमी खाना खाता है, और वो लोग जो है उस लंगर में दान भी देते हैं, क्रॉप्स भी दान देते हैं। आज की डेट में उस इको फाउंडेशन ने गोल्डन टेम्पल के गुरुद्वारे के साथ मिलके उनकी जितनी जमीन थी और जितने गुरुद्वारे पंजाब और हरियाणा में और इंडिया में है पार्टिकुलर, उन सारे गुरुद्वारों की जमीन के ऊपर इको सिख फाउंडेशन जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है और लार्ज स्केल पे करने जा रहा है। ये मैं आपको एक एग्जांपल सिख धर्म के जो सिख जो लोग कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इको सिख का। दूसरी बात रही कि देखिए, मैंने पहले बताया कि पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, साथ में पॉपुलेशन भी घटानी है। आप पॉपुलेशन अगर 200 करोड़ पे ले जाओगे और आप ये कहोगे कि फूड नहीं है, तो मरेंगे लोग, आपस में कट के मरेंगे। आपने अगर पॉपुलेशन का इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अगर पढ़ा हो, इकोलॉजी में एक रूल है कि अगर फूड नहीं है तो भी लोग आपस में मिलके पॉपुलेशन रेगुलेट करते हैं। पॉपुलेशन रेगुलेशंस के मैनी वेज हैं, जिसमें ड्रॉट, समुंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सारे पॉपुलेशन इकोलॉजिकली बाउंड करते हैं। लेकिन किसी कंट्री की सस्टेनेबल पॉपुलेशन है, और अगर उस कंट्री में सस्टेनेबल वेजिटेशन कवर है, उस कंट्री में सस्टेनेबल फॉरेस्ट कवर है, उस कंट्री में सस्टेनेबल पॉपुलेशन साइज है, उस कंट्री में सस्टेनेबल जस्ट वी कैन से दैट एग्रीकल्चर क्रॉप है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एंड एग्जांपल इज थाईलैंड। आप थाईलैंड को देखिए, थाईलैंड सबसे छोटा सा देश है, भूटान, लेकिन भूटान का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है। भूटान गरीब कंट्री है लेकिन उसका हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज्यादा है, क्योंकि नेचर के साथ हम जितना रहेंगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ की हो सकती है, हमारे रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी पॉपुलेशन 30 करोड़ की थी तब भी हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत थी। बेसिकली हमें अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको नेचर ओरिएंटेड करना पड़ेगा, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा,
हमारे जो इकोसिस्टम है उनको मेंटेन करना पड़ेगा। नेचर के ऊपर इकोनॉमिक्स की बजाय इकोनॉमिक्स के ऊपर नेचर को तरजीह देनी पड़ेगी। अगर हम ये सारे फैक्टर करेंगे तो श्रीलंका जैसे क्राइसिस हमारे पास नहीं आएंगे। और मैं आपको एक चीज इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, श्रीलंका के पास वर्ल्ड के सबसे बढ़िया सुंदर मैंग्रोव्स हैं, श्रीलंका के पास वर्ल्ड के सबसे बढ़िया कोरल रीफ्स हैं। नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका जो है और जो हमारा साउथ पोर्शन है वो बहुत सुंदर है। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो यूक्रेन के पास तो सब कुछ था, लेकिन वहां भी तबाही आ गई। पॉइंट ये नहीं, ये सारी मैन मेड है। हम नेचुरल क्राइसिस की बात जब करते हैं तो नेचुरल मिटिगेशंस में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक रोल प्ले करेगा। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल और मैन मेड क्राइसिस की बात करते हैं तो हमारे पास जो है, जब जनसंख्या 150 करोड़ होगी तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो हमें सस्टेनेंस और सस्टेनेबल सॉल्यूशन की बात करनी है। और जब हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सोयल इकोसिस्टम को बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े लोग, इवन जो मैंने आपको सिक का जो बताया वो भी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बड़े लार्ज लेवल पे जो है कर रहे हैं। इसके साथ हम इसको हम ये नहीं कर सकते कि एक ही दम करें, हम इसको फेज मैनर में भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 150 करोड़ की जनसंख्या आज ही सबको ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। जब तक आप स्टेप वाइज फेज मैनर में इन स्ट्रेटजीज पे नहीं जाएंगे तब तक जो है हम इन्वायरमेंट के लिए रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। तो हमें फेज वाइज मैनर में इनको करना पड़ेगा। हाँ जी, थैंक यू सर। फिर भी 150 करोड़ जनसंख्या का पेट अकेले ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं बन सकती। वो तो मैंने कहा, वो तो मैंने आपको कहा जी मैडम, वो तो मैंने कहा पॉपुलेशन रेगुलेशन क्या है, हमने आपको सोल्यूशन बताए कि एफॉरेस्टेशन एंड पॉपुलेशन रेगुलेशन। हमारी प्रॉब्लम हमारी जनसंख्या है तो हमारा सबसे बड़ा बाजार भी तो हमारी जनसंख्या है। आपका चाइना आपके ऊपर अटैक क्यों नहीं करता? क्योंकि आपकी जनसंख्या उसका मार्केट है। आपका यूएस अटैक क्यों नहीं करता? हमारे को बचा भी हमारी जनसंख्या रही है। तो बहुत इफ्स हैं, बहुत बट्स हैं, बहुत पॉजिटिव है, बहुत कॉन्स है। सस्टेनेंस बहुत जरूरी है और स्टेप वाइज मेजरमेंट्स बहुत जरूरी है। जब तक हम स्टेप वाइज मेजरमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है हम सॉल्यूशंस पे नहीं जा पाएंगे, गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर। कोई बच्चा बेटा क्वेश्चन पूछना चाहता है? हाँ, आ जाओ यहाँ पर। Good afternoon, sir. Myself Lavanya Singh, Biotech first year. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने कहा था बायोडाइवर्सिटी लॉस में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी एक मेजर कॉज है। पर सर इंडिया में प्रॉब्लम तो ये है ना कि यहाँ पे जेंडर डिस्प्रपोर्शनैलिटी बहुत होती है, तो उसको कंट्रोल करने का आप कोई रीजन बताएं कि कैसे जेंडर डिस्प्रपोर्शनैलिटी रोके तो पॉपुलेशन ग्रोथ रुकेगी। बेटे जहां तक हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल है, आपके दो सवाल जो है मिक्सिंग हो रहे हैं। एक आपका सवाल जो है सोशल लेवल का सवाल है, जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं वो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, सोशल लेवल पे उसको कोज करते हैं। दूसरा है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉपुलेशन कैसे डिक्रीज करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी कंट्री हो जहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है, जहाँ पे केंद्रीय सरकार होती है, वो सरकार सिर्फ कानून बना सकती है। ठीक है, और कानून को स्टेट गवर्नमेंट और जो अच्छे सिटीजन होते हैं वो कानून का पालन करते हैं। ठीक है, बट जो सामाजिक सिस्टम होता है, सामाजिक सोशल सिस्टम होता है, जब तक वो रूटेड नहीं होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब तक हमारे नेशनल कैरेक्टर के अंदर इन्वायरमेंट की बात नहीं होगी, जब तक जो है हम इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इन्वायरमेंट हमारी सोसाइटी के अंदर डीप रूटेड, और इसके लिए काम कौन करता है? हमारी सोसाइटी में हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे रिलीजन की बात करें, हम कहते हैं कि जो हमारे बहुत से रिलीजन्स है जो ब्रॉड माइंडेड है, आप अपने सिख धर्म को ले लें, क्रिश्चियनिटी को ले लें, इवन इस्लाम के अंदर भी जो है, या हिंदू धर्म के अंदर भी जो है। अब हिंदू धर्म के अंदर हर देवी देवता के साथ जो है एक पक्षी को या एक पशु को जोड़ा गया है। वो ये नहीं है अब गणेश जी के साथ चूहा जोड़ा गया, क्या ये है कि चूहे को नहीं मारेंगे लोग, पेस्टिसाइड्स का यूज भी करते हैं। द पॉइंट इज दैट कि हमें लोगों को समझाना कैसे है, हमें लोगों को चाहे रिलीजियस सेंटीमेंट से समझाना पड़े, या लोगों को सोशल सेंटीमेंट से समझाना पड़े, या लोगों को
लॉ के अकॉर्डिंग समझाना पड़े या सारी चीजों को मिलकर समझाना पड़े, तो उसके लिए हम सोशल लेवल पे काम कर सकते हैं। आपके जो कॉलेजेस है, एनएसएस है, एनसीसी है, वो सारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे काम कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि मेल और फीमेल जेंडर अनइक्वालिटी ह्यूमंस के अंदर है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इकोसिस्टम। जितना ह्यूमन इंपॉर्टेंट है उतना एक इंसेक्ट इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने ह्यूमन ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए पूरी बायोडाइवर्सिटी पे प्रेशर ला दिया। ह्यूमन तो सिर्फ एक मात्र स्पीसीज है, अगर सारी स्पीसीज खत्म होने लगी तो ह्यूमन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने हनी बी को देखा होगा, जो मक्खी होती है। अगर ये मक्खी अगर दुनिया से लुप्त हो जाए तो ये दुनिया 10 दिन भी नहीं चलेगी। आप यकीन कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपका फूड प्रोडक्शन है सारा पॉलिनेशन बीज के थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। अगर ये इंसेक्ट वेजिटेशंस नहीं होगी तो नहीं होगा। ह्यूमन जो है उसकी पॉपुलेशन को हम कम करें, ऐसी पॉलिसीज हो। इवन आप अगर चाइना का एग्जांपल लेते हैं तो चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को बहुत हद तक रोका है। आप देखिए चाइना जो है नंबर 1 कंट्रीज था, लेकिन नेक्स्ट 10 ईयर में हम चाइना क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन रोकने के लिए आपको पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी, सोशल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि ह्यूमन इज ओनली वन स्पीसीज, नॉट द होल इकोसिस्टम। हम सिर्फ एक स्पीसीज हैं, हम ठेका पूरे इकोसिस्टम का लेते हैं। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू सर। Any other? It's time for a formal vote of thanks. Myself, Deepika Sharma from the Botany Department, on the behalf of Tamil Girls College in Nanagar and the entire fraternity of the institution, first of all, extend my most sincere thanks by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. My thanks to our today's speaker, Dr. Deepak Rai Babbar, Professor of Zoology from Kurukshetra University, Kurukshetra, who despite his busy schedule has found the time to grace this occasion and enlighten us about the environmental conservation. I also express my heartfelt thanks to the director of this college, Dr. Rinda Gandhi, and the principal man, Dr. Anup Tareja, for their kind words of encouragement and the support for this festival of thoughts. My heartfelt thanks to the teachers of the various departments from other colleges and the faculty for their valuable time they have spent with us. And I give my special gratitude to the technical team and the special thanks to the computer department for their hard work to ensure the smooth functioning of this memorable function. And at the last, I thank my students for their interest and their patience. And finally, I leave you this inspiring quote that I don't want to conserve my environment because I want to create that world where my environment need not to be conserved. I want to create that place where there is no need to be conserved. So our environment is important and there is need to be a conserve our environment. So it's our duty as a beautiful citizen to conserve it. It's our first most duty. Thank you, sir, for giving your time. Thank you very much. Okay, thank you all. Thank you, everyone.